Ladies and gentlemen, this is a big day inside the Lok Sabha with the criminal code bills now being passed by the Lok Sabha. This at a time when several opposition MPs have already been suspended. But the focus right now is also about the biggest criminal reform that has been brought in by the Modi government. What does this essentially mean? Keeping in mind that, remember, the IPC, the CRPC was just colonial era laws that were brought in. And that is exactly why whenever multiple cases were being probed by our agencies as well as the police system, they found that there were several lacunae that was never addressed, because remember, these laws were actually not changed since India gained independence. Today, Union Home Minister Amit Shah essentially focused on the fact that these redrafted bills essentially reflects the Indianness. It also brings in the much needed change. What we are going to do right now is going to play out those reactions coming in from the Lok Sabha. But at the same time, while this historical reform was actually brought in, what is it that the opposition MPs essentially had to say about this? They say that the Modi government has been extremely nervous about bringing in any change, and they wanted to bring about these changes minus the opposition. Why exactly was this statement made? This statement was made in light of the fact that over 140 parliamentarians have been suspended in both the houses. Remember, that was done essentially because of the unruly behavior of the parliamentarians, and largely this has become the biggest bone of contention between both sides. Not just that, also the mocking of the Rajya Sabha chairman is something that hasn't really gone down well, and both sides have essentially resulted in a major political face-off. Let's first play out what is it that the Union Home Minister had to say on the floor of the Parliament, and then we go across to our senior executive editor Abhishek Kapoor, who's going to put this into perspective as to what does this essentially mean, the changes that have been brought in, and what are the major changes that have been brought in. How does that really impact your lives? चैप्टर को समझिए, चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, वो कानून में मानववध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानववध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानववध नहीं थी। किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है। और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी नहीं समझ में नहीं। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। इस सदन को कहना चाहता हूँ कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एक लंबे अरसे बाद
अटल जी की सरकार ने भी ये प्रयास किया था, परंतु एक मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अपसपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अपसपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अपसपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। Union Home Minister essentially emphasizing the fact that these redrafted bills reflects the Indianness, the Indian constitution and the much needed reforms.